Good morning, all of you. In this part of alkyl and the aryl halides, we will discuss about the addition-elimination reaction and the elimination-addition reactions of aromatic nucleophilic substitution reactions. So, we will discuss both of these reactions, that is the addition-elimination and the elimination-addition reactions with their mechanism. So, these nucleophilic aromatic substitution reactions in case of the aryl halides takes place through these two different mechanisms. The first one is the addition elimination or the bimolecular displacement mechanism. In this particular mechanism, we have the requirement of the mild nucleophiles or the bases, and it operates only when there is an electron withdrawing group present at ortho and para position with respect to the halogen group. For example, in that particular case of chlorobenzene, there are two electron withdrawing groups which are present at the two ortho positions. So that leads to the addition elimination mechanism. तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती है, इसके अंदर वो रिएक्शन चलेगी. देखो कि कैसे चलेगी, अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. इन द फर्स्ट केस, that is the NH2 negative, which comes from a compound, for example from the NNH2 and so on. It attacks on the carbon containing the Cl, and thus with the shifting of the pi electrons towards the ortho position leads to the formation of a carbon ion, and in that particular step there occurs the addition. यहाँ पे addition हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल था, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसका क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर एडिशन. सो जैसे कि आपने नाम देखा था इस मैकेनिज्म का, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, मींस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. नाउ इन द सेकंड स्टेप द कार्बन आयन thus formed, the carbon containing these lone pair electron will shift these electron towards the carbon having the halogen, and thus it causes the pushing out of the Cl negative ion. जो Cl negative ion है वो आपका रिमूव हो जाता है यहाँ से देखो स्टेप से, और क्या बन लग गया वहां पे आपका ग्रुप जाके NH2. तो मीन्स आपका जो क्लोरोबेंजीन था उसको हमने एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया. क्लोरोबेंजीन को किस में कन्वर्ट किया है? एनिलीन के अंदर. जो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन है आपका, सब्स्टिट्यूटेड क्यों? अगर आपके सिर्फ H होते हर जगह के ऊपर बची हुई रिमेनिंग पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर, तो आप उसे प्योरली क्लोरोबेंजीन कहते हैं. लेकिन अब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 था, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन. तो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन को सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की तरफ आपने कन्वर्ट किया वाया दैट मैकेनिज्म, दैट इज द एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. तो इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि explain the addition elimination mechanism by taking a suitable example. तो इस टाइप से आप ये एग्जाम्पल लेंगे और इस मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन कर देंगे. It takes place in two steps. In the first step, the addition of the nucleophile takes place. In the second step, there occurs the elimination of the nucleophile. Elimination of the weak nucleophile takes place. देखो फर्स्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सेकंड स्टेप के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाता है. और इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर कौन बनता है आपका इंटरमीडिएट, को आपसे पूछे, दैट द कार्बन आयन. तो कार्बन आयन जनरेट होता है. तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे. सो नेक्स्ट वन इज द एलिमिनेशन एडिशन. फर्स्ट वन का क्या नाम था? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. और सेकंड वन का क्या नाम है? elimination addition mechanism, are also called as the Benzyne mechanism because it leads to the, as the name suggests, it leads to the formation of benzyne as a reaction intermediate. आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका कौन बनेगा? बेंजाइन. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे सिर्फ कौन बना था? कार्बन आयन. आपके एडिशन एलिमिनेशन में यहाँ पे तो आपका बेंजाइन की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसलिए हम एलिमिनेशन एडिशन को बेंजाइन मैकेनिज्म भी कह देते हैं. और जो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म था ये किस में चलता है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपका. और जो अनएक्टिवेटेड है आपके एराइल हैलाइड, सिंपल जैसे क्लोरोबेंजीन के अंदर चल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो ऑर्थो पैरा के ऊपर. आगे हम देखें भी गए कि अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो बेंजाइन मैकेनिज्म चलेगा ही नहीं. वो भी हम आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके मैकेनिज्म को समझने के बाद कि ऐसा क्यों होता है. तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म. और ये जो पार्टिकुलर जो रिएक्शन है जो भी हम देखने वाले, कन्वर्जन ऑफ द क्लोरोबेंजीन इनटू एनिलीन,
via the formation of the benzene mechanism. That is a particular case that called the Chichi-Babin reaction. The Chichi-Babin reaction वो reaction होती है which involves the conversion of the aryl halide into the aryl amine by the action of the soda amide means NaNH2 in the liquid ammonia. तो कई बार एग्जाम में आपसे चीची बेबिन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर भी नोट आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ चीची बेबिन रिएक्शन या एक्सप्लेन द बेंजाइन मैकेनिज्म या एक्सप्लेन द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म by taking a suitable example या complete the following reaction. तो एंड सो डिफरेंट वेज हो सकते हैं क्वेश्चन के पूछने के. सो चीची बेबिन रिएक्शन इज एन एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. तो देखो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. तो हमने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया और इसका जो क्या डाला हमने इसमें सोडा एमाइड NaNH2 सोडियम एमाइड या सोडा एमाइड भी हम कह सकते हैं. तो ये जो आपकी बेंजाइन मैकेनिज्म इसके लिए मस्ट कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि देयर मस्ट बी H एटम ऑन द कार्बन एटम ऑफ कौन सा ऑर्थो पोजीशन वाला जो कार्बन एटम उसके ऊपर एक H का होना जरूरी है. H होता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर लेकिन H जरूर हो. जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में और जो ऑर्थो पोजीशन है उस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर राइट या लेफ्ट किसी भी जगह पे या पैरा पोजीशन के ऊपर H का होना जरूरी है. तभी आपका बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल है. अदरवाइज बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं चलेगा. वो आगे अभी हम देखे भी गए. तो देखो सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि जो NaNH2 है जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जो कि यहाँ पे कहने को हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं लेकिन ये जो अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देता है तो हेयर इन दैट पर्टिकुलर स्टेप इट एक्ट एज द बेस. क्योंकि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे तो आप उसे क्या कहते हैं, दैट इज द बेस. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास रह गए, कार्बन के पास. तो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन. अमोनिया लॉस हो गया. एलिमिनेशन रिएक्शन है, देखो H निकल गया तो कार्बन आयन बन गया. कार्बन आयन तो पहले वाले मैकेनिज्म में भी बना था जिसको आप एडिशन एलिमिनेशन कह रहे थे. लेकिन अब ये कार्बन आयन तो बन गया. अब अगली स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन आयन बना है it will shift the carbon atom containing the negative charge containing that lone pair, shift these electron leads to the formation of another pi bond with the loss of the Cl negative ion. तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ट्रिपल आ जाएगा, Cl नेगेटिव लॉस हो जाएगा तो फिर से एलिमिनेशन हो गई. तो फर्स्ट टू स्टेप आर दी एलिमिनेशन and leads to the formation of a compound like that of the benzene, but there is a triple bond in between the carbon so called benzyne, benzyne. That is an intermediate, it is an unstable species. ये एक unstable species है. अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये वो स्पीसी होती है which are very reactive, which are very unstable, which are formed during the reaction, which will be utilized at once. ये बनेंगी और अब यूज हो जाएंगे. देखो नेक्स्ट स्टेप में NaNH2 ने देखो फिर अटैक किया और क्या होगा, देखो यहाँ पे NH2 कहाँ पे अटैक करेगा, दो में से किसी एक जगह के ऊपर. मान लीजिए जिस कार्बन के ऊपर से Cl डिपार्ट आउट हुआ था उसी कार्बन के ऊपर NH2 ने अटैक कर दिया. देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कार्बन की तरफ. जो ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन एटम है वो ब्रेक हो जाएगा. तो पहले NH2 ऊपर लग गया, दोबारा से कार्बन आयन जनरेट हो गया. अब क्योंकि हमने क्या ले रखा है, अमोनिया. देखो ये एडिशन स्टेप NH2 का ऐड हो. अब हमने क्या ले रखा है, अमोनिया. देखो ये अमोनिया. तो क्या होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है किसको दे, H को. देखो H को दिया, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा. देखो अब H ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया बोलो, H. दैट इज द एडिशन और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द एनिलीन. सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का ये क्या है, मैकेनिज्म है. या चीची बेबिन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है. इस पूरे मैकेनिज्म में फर्स्ट टू स्टेप आर दी एलिमिनेशन स्टेप एंड द नेक्स्ट टू स्टेप्स आर दी एडिशन स्टेप. सो देयर आर दी टोटल 4 स्टेप. ये 4 स्टेप मैकेनिज्म है. फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन. और आपकी सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप के दौरान जब एलिमिनेशन होती है तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है. सेकंड स्टेप के बाद आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है. थर्ड स्टेप के अंदर फिर से कार्बन आयन जनरेट होता है और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन आपका बन जाता है. तो ये था बेंजाइन मैकेनिज्म. एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. अब इसके बाद हम देखेंगे कि बेंजाइन जो मैकेनिज्म है इसके एविडेंस क्या है कि बेंजाइन मैकेनिज्म बनता भी है या नहीं बनता, उसके प्रमाण क्या है. तो हम देखेंगे उसके एविडेंस इज इन सपोर्ट ऑफ द बेंजाइन मैकेनिज्म. मींस रिएक्शन के दौरान बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता ही है. इसके लिए कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स होने जरूरी हैं.
तो सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज द आइसोटोपिक लेबलिंग टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता ही है। देखो कैसे हम क्या करेंगे, और ये पाया गया कि 2 आइसोबैरिक प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी हम नीचे देख पाएंगे। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, लेकिन आइसोटोपिक क्लोरोबेंजीन लिया, मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच था उस कार्बन को हमने रेडियो एक्टिव बना दिया। वो कार्बन 14 लिया। नॉर्मली तो हमारे क्या होते हैं, कार्बन 12 होते हैं और कार्बन, लेकिन ये कार्बन 14 लिया। देखो हमने स्टार से एस्ट्रिक लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये अब हमें जूम करके चलते कि मान लीजिए ये कार्बन 14 है, ये आपका कार्बन 14 है। उसके बाद सेम मैकेनिज्म चला, एलिमिनेशन होगी, NaNH2 डाला, NH2 नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो H लगा हुआ है उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अमोनिया लॉस हो गया है यहाँ पे, और एलिमिनेशन रिएक्शन है आपकी, क्योंकि H का लॉस हुआ है यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इस तरह से कार्बन आयन आपका जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन हैविंग द Cl, result in the loss of the Cl negative ion and the formation of the benzene as a reaction intermediate। लेकिन वो कार्बन के ऊपर हमने स्टार लगा रखा है जिसके ऊपर कौन था, Cl। अब अगली स्टेप के अंदर NaNH2 जब अपने, ये भी एलिमिनेशन स्टेप है, अगली स्टेप के अंदर देखो हमने 2 बार इसको करके लिखा। अगली स्टेप के अंदर जो NaNH2 जब हम डालते हैं, NH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है, एक तो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दे NH2 जिसके ऊपर पहले से Cl प्रेजेंट था, जिसके ऊपर हमने एक्सट्रिक लगा रखा है, या उसके एडजेसेंट कार्बन को भी दे सकता है, because that triple bond is present in between the 2 carbon atoms। हमने एज्यूम किया पहले फॉर्म के अंदर कि मान लीजिए जो NH2 नेगेटिव है, assume that the NH2 negative donate their electron pair attack on the carbon atom having no asterisk। उस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जिसके ऊपर एस्ट्रिक नहीं लगा रखा, जिसके ऊपर पहले से Cl नहीं था, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एस्ट्रिक वाले कार्बन की एटम की तरफ, तो आपके कार्बन आयन बन गया। अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, ये एडिशन स्टेप थी जिसमें NH2 का एडिशन हुआ। अगली स्टेप के अंदर अमोनिया जो हमने ले रखा है, तो एक कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन उसने H को दिए, तो H का एडिशन हो गया, ये एडिशन स्टेप है, NH2 लॉस हो गया, यहाँ से एनिलीन बन गया। तो कोई ये एक एनिलीन बना, इसमें कार्बन कौन से कार्बन पे NH2 लगा, क्या उस कार्बन पे लगा जिसके प्रेस्टिक था, नो, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर लगा है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी तो दूसरी भी है, देखो अब ध्यान से उधर, NH2 नेगेटिव ने जो अब की बार अटैक किस पे किया, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एस्ट्रिक, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दूसरे कार्बन की तरफ हो जाएंगे, NH2 का एडिशन हुआ, तो एडिशन स्टेप है ये आपकी, तो एस्ट्रिक वाले कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, NH2, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन बन गया। अब फिर वही अमोनिया ऐड करेंगे हम, तो जो कार्बन आयन बना है, द कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम ऑफ द अमोनिया, और जिसकी वजह से H का एडिशन हुआ, NH2 नेगेटिव आयन लॉस हो जाएगा, और इस टाइप से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो जो दो आपके फाइनल प्रोडक्ट बने हैं, दे आर दी आइसोमेरिक प्रोडक्ट, और ये डिफर कर रहे हैं आपस में कि एक के अंदर आपका NH2 उस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है जिसके ऊपर एस्ट्रिक है, और दूसरे में एडजेसेंट के ऊपर, मींस दीज आर दी आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट क्यों बने, इसलिए बने क्योंकि बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। सो इसीलिए जो NaNH2 में जो NH2 नेगेटिव आयन जो न्यूक्लियोफाइल था, उसके अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो 2 जगह पे थी, एक तो उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर एक्सट्रिक था, जिसके ऊपर हमने स्टार लगा रखा था, रेडियो एक्टिव जो कार्बन था, और एक दूसरा उसके जो नेबरिंग कार्बन एटम है उसके ऊपर। तो पॉसिबिलिटी 2 हो गई अटैक करने की, ये सिर्फ तभी हो पाई पॉसिबिलिटी क्योंकि बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, तो इसलिए हमने आइसोटोपिक लेबलिंग टेक्निक की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर दिया। सो द फॉर्मेशन ऑफ दीज 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट इन द Chichi-Pepin reaction can only be explained if the benzene is formed as a reaction intermediate। ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है, ये 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना हो। सिमिलरली हम बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हम डॉब्स रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम Cl को हटा के किसका लगाएंगे, बोलो वहां पे OH। सो नेक्स्ट हम लेते हैं ये Chichi-Pepin रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन थी, इसके बाद हम लेते हैं डॉब्स रिएक्शन, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट किया जाता है by using the by adding the aqueous to H at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere। तो इस केस में भी हमने क्या किया, देखो क्लोरोबेंजीन उसी टाइप से लिया और रेडियो एक्टिव बना दिया हमने उस कार्बन को, कार्बन 14 जिसके ऊपर Cl अटैच है। तो पहले हमने लिया था NaNH2 ले रहे थे, दैट्स द स्लाइट डिफरेंस।
वहां पे जो बेस ने लिया था वो क्या था, बोलो सोडा एमाइड, NaNH2। यहाँ पे क्या NaOH, NH2 नेगेटिव की जगह सिर्फ कौन आ गया, OH नेगेटिव। तो सेम मैकेनिज्म रहेगा आपका, Cl हट के OH लगेगा, वहां पे NaNH2 लिया था हमने चिचिपेमिन रिएक्शन में, तो वहां पे Cl हट के NH2 लग गया था। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं। तो जो यहाँ पे OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसने देखो H को दिए, तो वाटर लॉस हो जाएगा, वहां पे अमोनिया लॉस होता था, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे कार्बन की तरफ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एन एलिमिनेशन स्टेप है ये आपकी, कार्बन एन बन गया, वाटर लॉस हुआ। अब इसके बाद बोलो क्या डाले हम दोबारा से, ये आपके जो कार्बन जिसके नेगेटिव चार्ज है, इसके जो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे उस कार्बन की तरफ जिसपे Cl है, Cl नेगेटिव का लॉस होगा। सो सेकंड वन इज आल्सो द एलिमिनेशन स्टेप विद द लॉस ऑफ Cl नेगेटिव एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। का बेंजीन बन गया। अब बेंजीन को हम दो फॉर्म में लिखेंगे, देखो, क्योंकि अटैक करने के चांस दो होंगे, जैसे चिचिपेमिन रिएक्शन के अंदर था। अब हमने जो NaH लिया, NaH कहाँ पे अटैक करे, मान लीजिए अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर आपका स्टार नहीं लगा हुआ है, एस्ट्रिक नहीं लगा रखा, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे एस्ट्रिक वाले कार्बन की तरफ, कार्बन एन फिर बन जाएगा। तो ये आपकी एडिशन हुआ है, यहाँ पे एडिशन, OH का एडिशन। अब उसके बाद हम जब डालेंगे, बोलो क्या हो, यहाँ पे वाटर है हमारे पास, वहां पे कौन था, अमोनिया। तो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन H को देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन OH की तरफ, OH नेगेटिव आयन का लॉस होगा, तो H लग गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका फिनोल बन गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जो बेंजीन को हमने दोबारा लिख रखा है इक्विवेलेंट का साइन लगा के, कि जो OH नेगेटिव आयन अब किस पे अटैक करेंगे, OH का, वो अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके तरफ, तो जिसकी वजह से कार्बन आयन का जनरेशन होगा, एडिशन हो गया OH नेगेटिव आयन का। अब जो कार्बन आयन बना है, नाउ इट डोनेट्स देयर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, डोनेट देयर नेगेटिव चार्ज टू द H एटम ऑफ द वाटर, तो जिसकी वजह से H का फिर से एडिशन हो गया, OH नेगेटिव आयन का लॉस हो गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट। सो दीज टू प्रोडक्ट which are formed from the benzene are the isomeric product। दो तरह के फिनोल बने, एक ऐसा जिसमें एस्ट्रिक वाले कार्बन पे OH है, दूसरा ऐसा जिसमें एस्ट्रिक के साथ वाले कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ these two isomeric product in the Dawes reaction can only be formed, can only be explained if the benzene is formed as a reaction intermediate। तो चिचिपेबिन रिएक्शन और डाउस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हुए हमने एक्सप्लेन किया कि बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ही है, वो बनता है तभी तो ये दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन, इनका बनना हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, अदरवाइज हम बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये था फर्स्ट एविडेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस। जो ऑर्थो पैरा जो सब्सटीट्यूटेड है आपके एराइल हैलाइड, अगर हम वो ले लेते हैं, ऑर्थो भी सब्सटीट्यूटेड कर दिया, पैरा भी सब्सटीट्यूटेड कर दिया, तो आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, आपकी चिचिपेबिन रिएक्शन भी नहीं चलेगी। तो देखो किस टाइप से, मान लीजिए आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर देखो H लगा हुआ है, तो NaNH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेस किसको देता है फर्स्ट स्टेप में अटैक, आपने मैकेनिज्म सीखा अभी, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H एटम को, H होगा तभी तो करेगा ना डोनेट। तो क्लोरोबेंजीन में तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर H है, तो NH2 नेगेटिव आयन कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू द H एटम, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। लेकिन अब देखो आगे, देखो इस टाइप से एलिमिनेशन होती है, लेकिन अगर ऑर्थो पैरा को हम सब्सटीट्यूटेड कर दे, कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे OR H हटा दिया हमने हर एक ऑर्थो पैरा के ऊपर, हमने लिया NaNH2, अब ये इलेक्ट्रॉन दे किसको, देता तो कौन लेता, H, अब OR तो नहीं लेगा, मीन्स नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स वो कौन सा मैकेनिज्म था जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ये आपका बेस था, चाहे डोब्स रिएक्शन में OH नेगेटिव था या चिचिपेबिन रिएक्शन जो हम देख रहे हैं NH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन H को देता है, H होगा तभी इलेक्ट्रॉन देगा, H नहीं होगा नो रिएक्शन भी लगता। तो मीन्स अब रिएक्शन नहीं हुई, मीन्स द ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द चिचिपेबिन रिएक्शन व्हिच कंफर्म्स दैट द conversion of aryl halide into aryl amines by the action of soda amide in liquid ammonia takes place by the formation of the benzene। मीन्स बेंजीन मैकेनिज्म के थ्रू ही ऐसा होता है। तो ये सेकंड एविडेंस था कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। अगर आप ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है, अगर आप वहां से H हटा के कोई और ग्रुप लगा देते हैं तो चिचिपेबिन रिएक्शन नहीं चलती। तो दैट इज द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से H हटा के हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, तो अगर हम प्रोटियम हटा के ड्यूट्रियम लगा देते हैं तो रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है, नहीं तो
देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इसमें हमने ये रिएक्शन की, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, आप ध्यान से देखना। NH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है फर्स्ट स्टेप में, H को देता है, ठीक है। और फिर CH बॉन्ड का क्लीवेज भी होता है, देखो CH बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अमोनिया का लॉस हुआ। एलिमिनेशन स्टेप थी आपकी, फास्ट रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे H है, क्योंकि क्या यहाँ पे बोलो हमने क्या ले रखा है, H, हम ड्यूट्रिएटेड भी लेंगे अभी, ये कार्बेनाइन बन गया, तो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप को कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, जिसमें CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, दैट इज ए फास्ट रिएक्शन बिकॉज देयर इज ए H। अगर हम ड्यूट्रियम ले देते हैं तो वो लार्ज साइज का आपका आइसोटोप है, जो आपका ड्यूट्रियम है, H11 होता है प्रोटियम, H12 होता है ड्यूट्रियम। तो दोबारा से देखो स्टेप से आपकी एलिमिनेशन हुई, Cl नेगेटिव आपका बेंजीन बन जाता है। फिर अगली स्टेप के अंदर अटैक करता है NH2 नेगेटिव, किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर हम अटैक करके दिखा देते हैं, फिर कार्बेनाइन बन जाता है। देखो दोबारा से अभी हमने मैकेनिज्म बिल्कुल पूरा देखा था, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। जब हम दोबारा से अमोनिया डालेंगे तो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करता है, NH2 नेगेटिव लॉस हो जाता है, एडिशन रिएक्शन थी, H का ऐड हो गया, ये एनिलीन आपका बन गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है बोलो, फास्ट। अब देखो हम देखते हैं ड्यूट्रियम हमने ले लिया, ड्यूट्रियम लिया तो फिर हम क्या करें, ड्यूट्रेटेड ड्यूट्रेटेड क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, हमने डाला NaNH2, उसी टाइप से अटैक होगा, रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, लेकिन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर, रिएक्शन कम हो जाती है। अदरवाइज क्या होता, अगर इस H की इन्वॉल्वमेंट ना होती, अगर बेंजाइन ना बनता तो क्या होता, तो ऐसा होता, चाहे आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, प्रोटियम लगा दो, ड्यूटियम लगा दो, ट्रिटियम लगा दो, द रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या रहनी चाहिए थी, बिल्कुल सेम। लेकिन जब हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरोबेंजीन के अंदर, जो प्रोटिएटेड क्लोरोबेंजीन है जिसमें H लगा हुआ है, उसको जब हमने ड्यूटरेटेड क्लोरोबेंजीन से रिप्लेस कर दिया, हमने H हटा के D लगा दिया, तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोअर, वो धीमी हो गई। तो वही तो आपका प्रमाण है, वही तो एविडेंस है कि हाँ ये जो रिएक्शन है दैट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। देखो फर्दर रिएक्शन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, देखो इसी टाइप से। एक बार बॉन्ड देखना हमें किसमें जल्दी टूटेगा, CH बॉन्ड इज ए weaker bond which can break easily, CD bond is a stronger bond which cannot break easily। तो ये एलिमिनेशन स्टेप देखो उसी टाइप से, देखो हमने लिखा स्लो रिएक्शन है ये, तो यही तो डिफरेंशिएट था, यही तो एविडेंस था इन द इन स्पॉट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। आगे तो कार्बेनाइन बन गया, और कार्बेनाइन क्या करेगा, कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे डोनेट करेगा उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर Cl लगा हुआ है, तो Cl एक्टिव आयन लॉस होगा, आपके बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एलिमिनेशन स्टेप है, आगे की स्टेप तो सेम रहनी है। तो जो बेंजीन बन गया उसके अंदर हम दोबारा से NaNH2 ऐड करते हैं, जो NaNH2 है दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, एनी वन किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड द एडजेसेंट कार्बन एटम, resulting in the formation of the carbon ion, that is the addition step because there occurs the addition of the NH2 negative nucleophile. The last step, the carbon containing the negative charge, that is the carbon ion, donates their electron pair to the H of the ammonia with the loss of the NH2 negative ion, and then result in the formation of the final product. फाइन प्रोडक्ट दोनों में सेम है। तो डिफर किस चीज में किया कि जो आप प्रोटिएटेड क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। अगर आप ड्यूट्रेटेड क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो दैट इज द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बेंजीन मैकेनिज्म। तो जो बेंजीन मैकेनिज्म के सपोर्ट में जो एविडेंस हमने दिए वो कौन कौन से हमने मैकेनिज्म आपके एविडेंस दिए, एक तो ये कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रोटिएटेड ले लो, ड्यूट्रेटेड ले लो, तो रेट देखेंगे हम। एक हमने क्या किया था, ऑर्थो पैरा पोजीशन को हम क्या कर दें, प्रोटेक्ट ही कर दें, वहां पे H को हटा के आप कोई और ग्रुप लगा दें तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो रिएक्शन का नहीं होना ये एक्सप्लेन करता है कि दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बेंजीन मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मैकेनिज्म एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, और जिसमें पहली स्टेप के अंदर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर H का होना जरूरी है। तो उसी H को तो जो न्यूक्लियोफाइल है पहली स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन देता है और तब जाके कार्बन आयन बनता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर H की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन के ऊपर H का होना जरूरी है क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसकी होती है, बेस अपने इलेक्ट्रॉन उसी H को देता है। या हम आइसोटोपिक लेवलिंग टेक्निक के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो हमने चिची-बेबिन रिएक्शन को लेके एक्सप्लेन किया उसको, और डाउस रिएक्शन को भी लेके उस चीज को हमने एक्सप्लेन किया।
तो ये थे एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये हमने पढ़ा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर चली है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे Cl है यहाँ पे, तो Cl को हटा के क्या लगाना है हमें, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल। Cl हटा के हमने NH2 लगा दिया, Cl हटा के डॉग्स रिएक्शन हमने OH लगा दिया। लेकिन ये रिएक्शन इतनी इजीली, इतनी आराम से नहीं चलती है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर वेरी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए आने वाले न्यूक्लियोफाइल को वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली कैन नॉट टेक प्लेस इजीली इन केस ऑफ द आपके क्लोरोबेंजीन। ये उसका रीजन भी था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको बता चुके हैं। तो ये था अबाउट द यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर, आपके एराइल हैलाइड्स के अंदर। दो तरह के मैकेनिज्म आपने देखे। पहला मैकेनिज्म कौन था, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जो सिर्फ 2 स्टेप में चला। और नेक्स्ट था आपका एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जिसको आपने बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहा। ये 4 स्टेप के अंदर चलता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पहली 2 स्टेप आपकी क्या होती है, पहली 2 स्टेप आपकी एलिमिनेशन स्टेप होंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। लास्ट 2 स्टेप आपकी एडिशन स्टेप होंगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इन 4 स्टेप के अंदर सबसे पहली स्टेप जो एलिमिनेशन, उसके दौरान हमेशा कार्बन आयन बनेगा। उसके बाद जो सेकंड एलिमिनेशन स्टेप होगी, उसके दौरान बेंजाइन बनता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो एडिशन स्टेप होगी, जिसमें कार्बन आयन बनता है। उसके बाद लास्ट एडिशन स्टेप होगी, जिसके अंदर आपका फाइनल प्रोडक्ट जाके बन जाता है। तो इस तरह से दैट ऑल अबाउट द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था वो आपका बेंजाइन मैकेनिज्म था। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द aromatic nucleophilic substitution reactions. Thank you.